Good morning students. Today we are going to discuss about measurement of heat. Students, in the chapter heat, earlier we have discussed that how we can measure the temperature, where we have seen that there are two systems through which we can measure temperature, that is in degree Celsius or in degree Fahrenheit. Okay, and students, we have also seen that the amount of heat depends upon the mass, temperature difference and specific heat of the object. स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर को हम लोग मीज़र कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, और हमने ये भी पढ़ा कि जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे, उनके टेम्परेचर डिफरेंस पे और उनके स्पेसिफिक हीट पे। तो अभी हम इन्हीं का यूज़ करके हीट की मीज़र करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, as our topic is measurement of heat, so you all know that earlier we have discussed that on what factors or what is the amount of heat depends upon. Okay, so it basically depends upon three factors. The very first is mass, the very second is temperature difference and the very third is specific heat. तो जो amount of heat होती है वो मास पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, वो स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिलती है। एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, लेट अस सी। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट अ सब्सटेंस अप टू सर्टेन टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें किसी सब्सटेंस को किसी सर्टेन टेम्परेचर तक हीट अप करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज़ गिवन बाय अमाउंट ऑफ हीट इक्वल्स टू, हम उसको ऐसे देते हैं, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू mass of the substance into specific heat of the substance into temperature difference. Okay, you can see here this amount of heat is given by mass of substance into specific heat into temperature difference. Okay, so students, it is clear that the amount of heat required to heat the water or any substance depend upon the mass, specific heat and temperature difference of the substance. Okay, तो students, अगर हम दो substance लेते हैं, suppose one is oil and the other is water, एक oil है और एक water है, तो इन दो सब्सटेंस के लिए अगर हमें अमाउंट ऑफ हीट आइडेंटिफाई करनी है तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। दोनों के मास क्या है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है और दोनों की स्पेसिफिक हीट क्या है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ हीट बेसिकली होता क्या है, ये तीनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। कौन से तीनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है डेल्टा टी। सो स्टूडेंट, डेल्टा टी इज़ बेसिकली द डिफरेंस। तो सपोज़ करिए हमने एक कंपाउंड लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, आप इसको कोई भी समझ सकते हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर T1 हो जाएगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। सो स्टूडेंट, सपोज दैट यू आर टेकिंग टू ऑब्जेक्ट, so the temperature of first will be T1 and second will be T2. Okay, and what you have to do to obtain delta T, you will subtract T2 minus T1। दूसरे ऑब्जेक्ट से आप पहले के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, डेल्टा टी। So students, for this let us see an example. And one more thing what you have to remember is that talking about its unit,
so it will come as calorie. Okay, the unit is given in calorie. Basically unit of heat is calorie. You have to remember this only. Now student, there is a question, what amount of heat will be required to raise the temperature of 200 gram of water? So mass is equal to 200 gram. Okay, from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. So here two temperatures is given. T1 is equal to 20 degrees Celsius and T2 is equal to 40 degrees Celsius. Okay, and also specific heat is 1 calorie gram per gram degree Celsius. Okay, so students, you have to generally fix them. So we have to, what we have to do, we have to multiply 200 into 1 into this delta T, and delta T is what, 20 डिग्री सेल्सियस. तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, हमें क्या करना है, चूँकि अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. तो यहाँ पे मास हमारा दिया हुआ है 200. ओके, फिर स्पेसिफिक हीट दी हुई है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. सो फॉर दिस वी विल पुट 1. एंड स्टूडेंट डेल्टा टी क्या है, बोला है कि फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दो टेम्परेचर्स हैं, पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर 40 डिग्री सेल्सियस है. तो 40 डिग्री सेल्सियस जाने में इसको कितनी हीट लगेगी, तो हम टेम्परेचर्स को क्या करें, 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से जो हमें डेल्टा टी निकल के आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा टी आ जाएगा 20. ओके, एंड आंसर विल बी 4000 कैलोरी. सो दस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज 4000 कैलोरी. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा वो 4000 कैलोरी होगा. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू क्लास.